Hello everyone, welcome back to the channel Easy Breezy. Hope you guys are doing well. So today I have come up with another topic, that is the difference between classical and Keynesian school of thought. So whenever we read any economics textbook, we often come across these words like the classical school of thought said this, the Keynesian economics is all about this. But we always have a little confusion in our mind as to what is classical economics, the school of thought, and what is the Keynesian school of thought and the Keynesian economics. So today all your doubts are going to be cleared. Without further ado, let's begin. So first of all, on your screens you can see these famous 5 classical economists. So the number one economist that we have on the number one position is Adam Smith. Adam Smith has given a very famous work that we call as Wealth of Nations, and together it is an inquiry into the nature and cause of wealth of nations. The second is J.B. Say or Jean-Baptiste Say. J.B. Say is a French economist, rather was a French economist, who gave a very famous law that forms the core or the foundation of the classical economics, that is the Say's law of market. Then we have David Ricardo, Thomas Robert Malthus on number 4, and fifth is John Stuart or J.S. Mill. Because we should know who are these people when we talk about classical economists. कौन है classical economists? You should know that these all are from the classical category. Then we have the Keynesian school of thought, and the person behind this Keynesian school of thought is none other than J.M. Keynes or John Maynard Keynes, who was a British economics. And I would say whatever portion we study in macroeconomics, whatever topics are there in macroeconomics, most of those topics are because of his prominent work done in that subject and in that field. Now, before coming on to the actual difference कि classical economics क्या है and Keynesian economics क्या है, पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं एंड थोड़ा समझते हैं कि ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स, केनेशियन इकोनॉमिक्स, ये सब आया कहाँ से, ये केनेशियन रेवोल्यूशन क्या है. सो आई विल टेक यू बैक टू द ग्रेट डिप्रेशन, दैट इज़ द पीरियड ऑफ 1929 एंड 1930s. ये जो पीरियड था इसमें द यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, बेसिकली दे वर सफरिंग द पीरियड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, बिकॉज इस टाइम पे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सस्पिशन था, बहुत फियर, पैनिक क्रिएट हो गया. वॉल स्ट्रीट जो है, दैट इज़ द यूएस स्टॉक मार्केट, वो क्रैश हो गई. एंड depression was there in the economy, unemployment was at a very large scale, in huge number, people lost their money, so it was a very bad scenario at that point of time. अब जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, इनका एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नोशन ये था कि उनका मानना था कि इकोनॉमी के अंदर कभी अनएम्प्लॉयमेंट आ ही नहीं सकती. इसको हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में अभी, बट आई एम टेलिंग यू द मेजर पॉइंट्स दैट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स दे सेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट कैन नेवर एवर अकर इन द इकोनॉमी. अगर ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की कोई सिचुएशन होगी भी तो मार्केट उसे अपने मैकेनिज़्म से अपने आप ही एक सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज़्म क्रिएट करेगी, और जो भी फ्लक्चुएशंस हैं, वट एवर इम्बैलेंस इज़ देयर इन द इकोनॉमी, it will automatically get corrected. But जब डिप्रेशन हुआ तो इनकी जो नोशन थी वो एक्चुअली दैट वाज प्रूवन रॉन्ग.
बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी लार्ज नंबर. बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, प्रेवलेंट हो गई एंड डिप्रेशन आ गया. एंड तब तो इकोनॉमी ने अपने आप को कोई एडजस्ट नहीं करा, वो सेल्फ एडजस्ट नहीं हुई एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर. तो उस टाइम पर केनेशियन रेवोल्यूशन हुई और ये रेवोल्यूशन थी इन द थॉट, इन दिस थॉट कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ अकर्ड. अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वन ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाज AC पीगू. AC पीगू के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ चल रही है हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं अगर हम वेजेस कट कर दें. बट that was a wrong approach in correcting such a mechanism, because what was actually the problem behind what Pigou said was कि Pigou was applying the microeconomic phenomena to the macroeconomic situation. वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल को अप्लाई कर रहे थे एक ऐसी सिचुएशन में जो कि माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल मांग ही नहीं रहा है. तो Keynes, according to Keynes, he said कि if you are going to cut the wages further, then it is going to further worsen the condition of the economy. इकोनॉमी और बुरी सिचुएशन में आ जाएगी बिकॉज एज इन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. देयर इज़ अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट दैट्स प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी. सो अकॉर्डिंग टू केन्स ही सेड कि ये जो सिचुएशन है दैट्स बिकॉज ऑफ द डेफिसिट डिमांड, कि जो एग्रीगेट डिमांड है इन द इकोनॉमी वो बहुत कम हो चुका है, इस वजह से ये सिचुएशन आई है. सो केन सेड कि अगर हम डिमांड को बढ़ा दें, इफ़ वी इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड देन दिस प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड, और वो वेजेस कट होने से नहीं होगा. सो पीपल अंडरस्टूड कि येस कि अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है और डिप्रेशन इन द इकोनॉमी हो सकता है, दैट्स अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन. एंड जब केन्स ने इस सिचुएशन को देखकर अप्रोप्रिएट मॉडल्स लेकर आए, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली तब इंट्रोड्यूस हुआ. वी गॉट टू नो द मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आफ्टर द डिप्रेशन वी सॉ दोज मॉडल्स कमिंग फ्रॉम J.M. Keynes, एंड ऐसे जाके ये केनेशियन रेवोल्यूशन हुआ इन द इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट एंड दिस गॉट टू बी नेम्ड एज द केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट. सो ये जो क्लासिकल एंड केन्स के जो डिफरेंस है, ये स्टोरी कहाँ से आती है, दैट कम्स फ्रॉम द सिनेरियो ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. जब केन्स ने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स नहीं अप्लाई होने चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, एंड ही गेव पुट फॉर्थ हिज थ्योरीज जो कि अभी हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिकल व्यू, कि क्लासिकल व्यू क्या कहता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिकल व्यू वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द व्यूज़ ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो कि हमने पहले पढ़े हैं, लाइक एडम स्मिथ, लाइक पीगू, like J.S. Mill, J.B. Say. Okay, so first point is the microeconomic issues. मतलब इसका मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को ही ध्यान में रखकर दे हैव गिवन ऑल द थ्योरीज, लाइक अ पर्टिकुलर फंक्शनिंग ऑफ अ सिंगल फर्म, फंक्शनिंग ऑफ द प्राइस मॉडल, तो प्राइस डिटर्मिनेशन, तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक को फोकस में लिया क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, एंड दे इग्नोर्ड एंड डिडंट टेक इनटू अकाउंट द मैक्रो इकोनॉमिक साइड ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि केन्स highlighted and emphasized upon it. Next is the laissez-faire policy. Classical economists believed in the laissez-faire policy. Laissez-faire policy क्या होती है? Laissez-faire policy होती है leave me alone policy. मुझे अकेला छोड़ दो. मतलब इनका मानना था कि जब इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने आप ही करेक्ट हो जाएगी, एंड इकोनॉमी को
कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है. लेट द इकोनॉमी फंक्शन ऑन इट्स ओन. इंडिपेंडेंट फंक्शन करने दो इकोनॉमी को. किसी भी तरह की गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए. सो इनका मानना था दैट द बेस्ट फिस्कल या द बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी इज़ नो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी. दैट इज़ कोई ऐसी पॉलिसीज़ होनी नहीं चाहिए, कोई भी किसी तरह का इंटरवेंशन इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए. एंड जैसे इकोनॉमी फंक्शन कर रही है, लेट इट बी. ओके. द नेक्स्ट इज़ द इनविजिबल हैंड, और वी कैन से इट as the self-adjusting mechanism of the economy, self-correcting mechanism of the economy. इसमें इसका मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई भी इम्बैलेंस है, कोई भी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, या जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अकर हो रही है, तो इकोनॉमी अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी. देयर इज एन इनविजिबल हैंड दैट विल कम ओवर एंड correct the economy and bring back to the equilibrium level, to the previous equilibrium level. और जो भी डिसबैलेंस होगा ये टेम्परेरी सिचुएशन है. इकोनॉमी अपने आप ही सेल्फ एडजस्ट हो जाएगी. इट विल ऑटोमेटिकली बैलेंस इटसेल्फ अपने आप से खुद से. देन इज़ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्लासिकल इकोनॉमिक्स की ये अजम्पशन थी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो, कि उनका मानना था कि जो भी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, इट्स अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट. परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट है मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, एंड जो भी कंडीशंस आती हैं परफेक्ट कंपटीशन में वो फंक्शन कर रही हैं इन द इकोनॉमी. ये इनकी अजम्पशन थी. द नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द सेज लॉ ऑफ मार्केट. सेज लॉ ऑफ मार्केट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, it was given by the French economist J.B. Say. and ये सेज लॉ ऑफ मार्केट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट सेज दैट द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. मतलब सप्लाई अपनी खुद की डिमांड क्रिएट करता है मार्केट के अंदर. मतलब कि इसका ये है कि डिमांड चाहे जैसी भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट द फोकस इज़ ऑन द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. सिर्फ हम सप्लाई पे ध्यान दे रहे हैं कि जो सप्लाई है, जितना सप्लाई हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ही डिमांड आ जाएगी इन द मार्केट. सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो कि सप्लाई साइड पे फोकस कर रहे थे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो क्लासिकल व्यू है ये लॉन्ग रन में फोकस कर रहा है. They are not considered about anything, any fluctuations, any changes in the short run. They are only focusing on the long run aspect. This is what is the classical view all about, that sums up and only focuses on the microeconomic issue, self-adjusting mechanism, that there is no government intervention that is needed, there's a perfect competition that's prevailing in the market, and the law that is forming the core of this classical economics is the Say's law of market. That is, the supply creates its own demand, given by the French economist J.B. Say. And applicable in the long run. This view is applicable in the long run because the classical economists did not consider the changes and anything in the short run. Then we have the Keynesian view. The Keynesian view is totally opposite of what the classical view says. Keynesian view कहता है दैट द डिमांड क्रिएट इट्स सप्लाई. केनेशियन इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, ना कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. वो कहते हैं कि जो भी सप्लाई है वो डिमांड पे डिपेंड करता है कि लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, व्हाट आर द कंज्यूमर्स डिमांडिंग, एंड उसी हिसाब से प्रोड्यूसर्स सप्लाई करते हैं. ओके. केन्स बिलीव्ड इन द वेज प्राइस रिजिडिटी, या जिसे हम कह सकते हैं इट इज़ नोन एज द स्टिकी वेजेस कॉन्सेप्ट.
केन्स बिलीव्ड कि जो वेजेस हैं, प्राइसेस हैं, दे आर स्टिकी. एंड जो केनेशियन इकोनॉमिस्ट का व्यू था वो कहते थे कि वेजेस एंड प्राइसेस फ्लेक्सिबल होते हैं. ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी अपने आप खुद एडजस्ट कर लेगी, मतलब वेज प्राइस फ्लेक्सिबल है ना, कि वेज प्राइसेस फॉर एग्जांपल अगर डिमांड ऑफ द लेबर या सप्लाई ऑफ लेबर में कोई इम्बैलेंस है, तो उनका मानना था कि डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर अपने आप इक्वेट हो जाएगी, अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. क्यों? बिकॉज वेज प्राइस फ्लक्चुएट होगा. वेज रेट इस तरह से फ्लक्चुएट होगा कि जो डिमांड ऑफ लेबर है एंड सप्लाई ऑफ लेबर है वो इक्वल हो जाएगी. तो ऑब्वियसली इट इज़ अंडरस्टूड कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, दे बिलीव दैट द वेजेस एंड द प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल. बट केन्स कहते हैं नो, दे वर स्टिकी. They are not flexible, they are rigid. This was the Keynesian view. Keynesian view said कि government intervention is extremely necessary. केन्स का मानना था कि अगर इकोनॉमी में कोई भी सिचुएशन होती है जो कि डिसबैलेंस है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर रही है, सो केन्स एम्फोसाइज दैट द गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन इन सच अ सिचुएशन ताकि वो करेक्ट हो सके एंड द इक्विलिब्रियम इज अगेन अचीव्ड इन द इकोनॉमी. सो अकॉर्डिंग टू केन्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी so that the economy continues to function in equilibrium. Then is unemployment. Unemployment means that according to Keynes, economy में unemployment की situation बहुत normal है. According to Keynes, full employment नहीं होता economy में at all times. Keynes के accordingly equilibrium underemployment level पर भी हो सकता है and ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू केन्स ही सेड कि ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जब इकोनॉमी के अंदर देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है लेकिन उसके बावजूद भी इक्विलिब्रियम हम अचीव कर सकते हैं. दैट मीन्स व्हेन द आइडल कैपेसिटी इज स्टिल देयर, अभी हमने पूरी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं अचीव करा, उसके बाद भी हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ सकते हैं, विच ही टर्म्ड एज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सो अकॉर्डिंग टू केन्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इकोनॉमी इज ऑलवेज फंक्शनिंग ऑन अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अकॉर्डिंग टू केन्स, अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करती है एंड इट इज़ अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन इन एनी इकोनॉमी. Then we have aggregate supply curve. That's really important. जब हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, दैट्स वर्टिकल. वी हैव अ वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड व्हेन वी आर स्टडिंग द क्लासिकल इकोनॉमिक्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं. इसका मतलब ये है कि डिमांड चाहे जितनी भी हो, जैसी भी हो, सप्लाई पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड सप्लाई इज़ वर्टिकल. ओके, बिकॉज वी आर बिलीविंग दैट द सप्लाई इज़ क्रिएटिंग इट्स ओन डिमांड. what is responsible for the demand is supply. Okay, and according to the Keynesian view, Keynes said that the aggregate supply curve is not vertical, and Keynes took into account the short run scenario of the economy, and Keynes के accordingly we all are dead in the long run. Keynes said that short run is also very important and economy experiences changes, different fluctuations in short run also. So according to Keynes, short run was given importance, and according to the classical economists, the long run was given importance. The classical economists didn't pay heed to short run scenario, whereas Keynes paid full attention to the short run scenario, and according to him we all are dead in the long run. So these are few points, very important points that you must take into account and keep in your mind
while you come across the words classical and Keynesian, जब भी आप क्लासिकल एंड Keynesian पढ़ो आपको एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए, यस, इफ़ वी टॉक अबाउट क्लासिकल इट इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, इट इज़ अ सिचुएशन जहाँ वेज एंड प्राइसेस फ्लेक्सिबल हैं, इकनॉमी अपने आप एडजस्ट हो रही है, लाइसे फेयर पॉलिसी है, इकनॉमी सेइंग लीव मी अलोन, मैं जैसे फंक्शन कर रही हूँ मुझे करने दो। एंड वेर एज Keynesian इकनॉमीज डिमांड साइड पे ज़्यादा फोकस करती है, एंड इट सेज दैट द डिमांड क्रिएट्स द सप्लाई, वेज प्राइसेस रिजिड हैं, स्टिकी हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी है, ओके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट टैक्सेशन, दे आर अ पार्ट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, और गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज इन व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स इट। अनएम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में वी हैव अ वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, Keynesian इकोनॉमिक्स में हम शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं, सो द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ नॉट वर्टिकल. So these are few points that you must keep into mind whenever you come across classical and Keynesian economics. So this will not create any confusion, and I hope the concepts are clear. If you still have any doubts, please drop your views, your doubts in the comment section below. Thank you. See you in the next video.